Education, the passport to the future. For tomorrow's belongs to those who prepare for it today. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Now, the person who has consumed himself to change the society and light the darkness in the life of your children. The principal of Sri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar, Mr. Yogesh Joshi, is requested to come on the stage and address the audience. Please give a huge round of applause for Sir to be present on the stage. The 21st century school is a fusion of technology and competition and skills, and the school and parents have to take step together. That will be an impetus towards the journey. Honorable Chief Guest, Mrs. Monica Punjabi Verma, the guest of the day, my dear student, Master, now Mr. Mayur Dakolia, dignitaries, parents, principals of various schools, media persons, Honorable Principal, Sri Kavartara Group of Institutions, Dr. S.K. Mishra, Principal, Devi Elia Private, ITI College, Mandleshwar, Mr. Anirudh Pariyar, Principal, Global Concept Karai, Mr. Rahul Goyal, Dignified Headmistress, Senior Coordinator, Mr. Doshi, and all the staff members and dear children. I am fortunate enough to read the 24th annual report here just before you. I want to mention here the vision and mission of the school. The school is steadfast to promote the balanced development of mind, body, and character, to develop 21st century skills for success on the globe. Our aim is to provide a safe learning environment so that the students would rely upon their personal attributes to lead a productive life and to become a contributory member of family, community, nation, and globe. Sri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar, is determined to shape the students with rigorous academics, core values, and to produce responsible citizens who work collaboratively with multicultural and global perspective. The school wants to carry all the students to their potential in a cooperative climate with innovative learning. Dear parents, बच्चों की स्कूलिंग और स्कूल का चयन हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हर एक पालक के जीवन में रहता है, और हम स्कूल में हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है सबसे महत्वपूर्ण और यूनिक होता है। जिस समय आपका ये बाल विद्यालय में कदम रखता है उस समय वह कई सारी उत्सुकता लिए हुए आता है, उसके लिए सारा संसार एक नया होता है। विद्यालय इन बच्चों के लिए बड़े ही रोचक तरीके से सारी शिक्षण सामग्री उत्पन्न कराता है, उपलब्ध कराता है, जिससे कि आपका बाल्य बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही रुचि के साथ अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके। विद्यालय 100% लर्निंग आउटकम पर काम करता है, जो कि सिर्फ एकेडमिक लेवल पर नहीं है,
बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक और सांस्कृतिक विकास को भी साथ में लिया जाता है, जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैलेंडर CCA का होता है, जिसके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाओं के रूप में वे सभी वैल्यूज हम विद्यार्थियों को देते हैं, जिसके माध्यम से वो एक सुघड़ व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ सके। एजुकेशन इज नॉट ओनली गेनिंग मार्क्स एंड ग्रेड्स। माननीय पालकगण, हम पहले इस मानसिकता से बाहर आए कि सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स पाना ही बच्चे की शिक्षा का स्तर तय करने का एक पैमाना है। हमें यह देखना है कि वह किस प्रकार से अपनी स्किल्स को बढ़ा पा रहा है। एग्जाम्स के अंदर मार्क्स लाना हो सकता है कि बड़ा आसान भी हो। यदि हम बच्चे को अच्छे से रटवा दें और उसे लिखवा दें तो शायद उसे 100% मार्क्स भी आ जाएं, लेकिन अगर वो शिक्षा जो उसने पाई है विद्यालय में, अगर वो उसे आगे बढ़ा नहीं पाता है या वो जीवन में उपयोग कर नहीं पाता है तो उसका शिक्षण, उसकी स्कूलिंग बेकार चली जाती है। तो आज हम इन बच्चों को जो आज कक्षा नर्सरी में एडमिशन ले रहा है, उसके जीवन के 20 से 25 वर्ष स्कूल और कॉलेजों में बीतने वाले हैं। हम आज जिस संसार में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहा है। अब हम कुछ और आगे का सोच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि मेडिकल साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से अपना रहा है। मैं आप लोगों के आसपास की बात करना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले हम ट्रैक्टर अगर ले आते थे खेतों के लिए, एक बड़ी बात होती थी। आज वो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। खेतों में अब हल और बैल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इससे भी आगे जाकर हमने और प्रगति की इस देश ने, इस संसार ने, जैसा कि ये कलयुग है और कल यानी कि मशीनें आगे बढ़ती जा रही हैं। आज किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के जो दुष्प्रभाव शरीर पर आते हैं उससे बचने के लिए वो छिड़काव इन ड्रोन्स के माध्यम से अपने खेतों में करवा रहे हैं। इससे भी बढ़कर अभी पिछले एग्जीबिशन में अपने ही स्कूल के बच्चों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो ज़मीन से उसकी नमी को माप लेगा और आवश्यकता होने पर वापस इरिगेशन शुरू कर देगा, जिससे मिनिमम यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, क्योंकि आज पानी की बड़ी कमी होती नजर आ रही है। संसार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम अब सिर्फ अंक और अंकों की दौड़ के पीछे न भागे, बच्चों के अंदर स्किल के लिए भागे। जब संसार इतना तेजी से बदल रहा है तो हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। जो जॉब आज से 20 साल पहले हम लोगों के सामने बड़े आसानी से और हम लोगों के बड़े प्रचलित हुआ करते थे। मुझे अच्छे से याद है जिस समय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से कुछ इंजीनियर्स देखने को मिलते थे और वो इंजीनियर्स सबसे अधिक समाज के अंदर उनका दर्जा सबसे ऊंचा होता था। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, उनको दहेज भी अच्छा मिलता था। आज आप अपने मोहल्ले में आवाज़ लगाइए, मुझे इंजीनियर चाहिए, शायद 10 से 20 निकल आए। स्थिति बदल रही है। वो जॉब जो आज से 10 साल पहले बहुत प्रचलित थे, आज उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। आज जो जॉब प्रचलित है, क्या वो 20 साल के बाद आपके बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे या उस समय की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी? माननीय पालकगण, हमें इस वर्तमान की मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें बच्चों को उस लिए तैयार करना होगा। इवन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, शार्क टैंक बड़ा ही प्रचलित सा एक सीरियल चल रहा था और वो क्या बता रहा था कि आज के युवा नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप
शुरू करना चाहते हैं और ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा कदम है। माननीय पालकगण, जब संसार इतना तेजी से बदल रहा है, हम अपने आप को पीछे नहीं रख सकते। हमें अपने बच्चों को आगे लेके आना होगा। तो अब क्या किया जाए? अब प्रश्न ये होता है कि अब हम करें क्या? निश्चित तौर पर इसका एक ही उत्तर है कि आज से 20 साल के बाद हमारे बच्चों को जब अपने जीवन यापन के लिए, अपने पैरों को जमाने के लिए जब अपने प्रयास करना होंगे, उस समय जो उसे स्किल को उपयोग करना है, वो स्किल की ट्रेनिंग आज उसे देनी होगी। क्योंकि द फादर इज द चाइल्ड ऑफ द मैन। जो सीड आज आप उन बच्चों में डालेंगे, वही 20 साल के बाद उन लोगों में एक पूरे रूप में आप लोगों के सामने होंगे। इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि संसार और प्रतिस्पर्धी होगा, जॉब नए आएंगे, आज के जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं ये उस समय उपलब्ध नहीं होंगे, चैलेंजेस बड़े हैवी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम आज वो बात करें जिन स्किल्स के बारे में बात करना है। ये कुछ स्किल्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस एंड लीडरशिप। आज कारपोरेट सेक्टर में टीम लीडर कहा जाता है, न कि मैनेजर, न कि प्रिंसिपल, न कि हेड। टीम लीडर कहा जाता है और जो लीडर पूरी टीम को सही तरीके से लीड करता है वही वास्तव में सक्सेसफुल कारपोरेट एम्प्लॉय कहलाता है। तो डियर पेरेंट्स, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो बड़े दूरदृष्टि है, आज से 4 साल पहले स्कूल को इस प्रतिस्पर्धी युग में बच्चों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने देश की विख्यात कोचिंग क्लास एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से एकेडमिक कोलैबोरेशन किया है, जिसका उद्देश्य इस निमाड़ क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को, जो कि इंदौर जाके या बाहर जाकर के इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें उस प्रतियोगिता में शामिल कराना और उन्हें सफलता दिलाना है। ये एक सौभाग्य की बात है कि ये शानदार फैकल्टीज IITians और रिनाउंड फैकल्टी ऑफ एलन श्री कवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर के कैंपस में स्थायी रूप से रुककर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं और उनके आने वाले समय में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स जो इस कोलैबोरेशन के हैं वो बताना चाहूँगा। मास्टर दर्पण वर्मा इस वर्ष क्लास 12 का जो बच्चा था, इसी विद्यालय में उसने अध्ययन किया था, हैज सिक्योर्ड पोजीशन इन नीट एग्जामिनेशन एंड प्लेस्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। ये बच्चा इसी साल पहले अटेम्प्ट में स्कूल से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में सिलेक्ट हुआ है। इसी वर्ष दूसरा बच्चा मेडिकल में शामिल हुआ है, मेडिकल कॉलेज जिसने ज्वाइन किया है, मास्टर प्रत्युष बर्डे। ये श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया गवर्नमेंट कॉलेज शिवपुरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। यहीं पर महिमा पटेल MGM भोपाल, श्रद्धा राय RKDF मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये सत्र 2021-22 के बच्चे हैं जिन्होंने सीधे सीधे इसी सेंटर से सफलता प्राप्त की है। सिर्फ मेडिकल के ही लाइन में नहीं, हमारे पास IIT के लिए भी सिलेक्शंस मौजूद हैं। इस वर्ष IIT में प्रतीक पवार का चयन IIT चेन्नई के लिए हुआ है। इसी
कैंपस से सन 2021-22 में। एक लंबी लिस्ट है ऐसे सक्सेस की और आने वाली है। यहाँ पर एक और बात जो महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दूं, PNCF, यहाँ पर कुछ नाम और है, अर्णव वर्मा IIT, शशांक जोशी IIT, आयुष आदित्य डावर IIT रुड़की, भव्य जैन NIT सूरतकाल, प्रथम आर्य SGSITS इंदौर, जिया पाटीदार UIT भोपाल, ये इस एसोसिएशन के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। इस वर्ष जो गत वर्ष NTSC की एग्जामिनेशन हुई थी, जिसमें मिस मोनी पाटीदार ने पहली और दूसरे दोनों राउंड में सफलता हासिल की और इस देश की नेशनल टैलेंट कहलाई है। मेरे जानकारी में जहाँ तक है, वो खरगोन जिले की प्रथम छात्रा है जिसने NTSC का दूसरा लेवल पार किया है। ये बहुत ही गौरवशाली और सम्मान की बात है पूरे निमाड़ क्षेत्र के लिए और खरगोन जिले के लिए। हालांकि उसके बाद अभी तक NTSC एग्जाम हुई नहीं है और भी बहुत सारे सितारे इसमें आने के लिए तैयार हैं। माननीय पालकगण, सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम को ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालय ने कॉमर्स के बच्चों के लिए भी इंदौर की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रिजल्ट देने वाली पेस कोचिंग क्लास जो कॉमर्स के लिए है से टाई अप किया है, जो बच्चों को 2 दिन ऑफलाइन स्कूल में आकर और 4 दिन ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस इस विद्यालय में जो इंटरैक्टिव पैनल है उसके माध्यम से ली जा रही है। ये कक्षा 11th और 12th कॉमर्स के बच्चे लगातार क्लास ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि बच्चों का सिलेक्शन, विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहीं से CA, CS या IIM के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके चयन यहाँ से होने लगे। ये क्लासेस सक्सेसफुली स्कूल में चल रही हैं और इसके लिए विद्यालय ने इंटरैक्टिव पैनल बनाया है, लगाया है। इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विद्यालय जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है स्कूल का एकेडमिक अचीवमेंट। जैसे कि परंपरा है, मैं मास्टर मयूर डाकोलिया हम लोगों के बीच में बैठे हैं। ये सन 2011 में विद्यालय से सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे और उस साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आपके स्कूल से था, मतलब पहली दोनों पोजीशन आपके स्कूल में थी। वो परंपरा आज भी आपके यहाँ मौजूद है। इस वर्ष कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आंचल छाजेड़ 97.2% के साथ उसने इस पूरे निमाड़ क्षेत्र का नाम और इस करई और मंडलेश्वर क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस छात्रा ने बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप 2 सब्जेक्ट में पूरे 100 मार्क्स लेकर के बच्ची पास हुई है, जो वास्तव में बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। आनंदो शर्मा मैथ्स के टॉपर रहे हैं, जिनका परसेंटेज रहा है 96.6। दर्पण वर्मा, जिनका अभी नीट में सिलेक्शन हुआ है, ये 95.2% से बायोलॉजी में टॉपर रहे हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें, क्योंकि रिजल्ट 2 या 4 बच्चों का आसानी से दिया जा सकता है अगर अच्छे बच्चे आपके पास हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर देन 90% बच्चों की संख्या है 29। 29 बच्चे मोर देन 90% मार्क्स लेकर के आए हैं। मोर देन 80% बच्चों की बात करेंगे तो वी हैव 30 स्टूडेंट्स, मतलब आधे से अधिक बच्चे 80% मार्क्स से ऊपर थे। और मोर देन 60% मार्क्स की बात करेंगे तो मात्र 15 हैं, और मोर देन 70% बच्चों की बात करेंगे तो 37 है। इन सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यालय के बच्चों का एवरेज परसेंटेज कितना रहा, जो उस रिजल्ट की क्वालिटी को बताता है। माननीय पालकगण, कक्षा 12वीं का एवरेज स्कोर साइंस स्टूडेंट का 76.5% किसी भी रिनाउंड भारत के किसी भी रिनाउंड स्कूल्स के लेवल में है या उससे बेहतर है। आपके विद्यालय के बच्चों ने जो मेहनत की है उसका यह परिणाम है।
अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो एवरेज स्कोर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट वाज 79.2%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल के बच्चों का रिजल्ट की क्वालिटी क्या है। ओवरऑल क्लास 12 का स्कोर परसेंटेज अगर देखेंगे 77.5%। ये आपके बच्चों का क्वालिटी रिजल्ट शो करता है। कक्षा 10वीं में भी हम पीछे नहीं थे। इस बार क्लास 10th में लक्षिता चौहान 97.2% के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन क्लास 10th रही है। एक बार फिर से स्कूल का नाम जिले के पटल पर इन्होंने लिखा है। यहां पर भी आप देखें 95% से ऊपर भी संख्या 5 बच्चों की है और मोर देन 90% 32 स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 80% 28 स्टूडेंट्स हैं। मोर देन 70% 32 स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 60% 24 स्टूडेंट्स हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मार्क्स नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे संख्या कम होती जा रही है। अर्थात यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बच्चों का एवरेज परसेंटेज अगर देखेंगे तो 75.2, ये भी किसी अच्छे या रिनाउंड स्कूल के लेवल में है। माननीय पालकगण, विद्यालय अपनी परंपरा को लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ाता रहेगा क्योंकि आपका सहयोग और आपका विश्वास विद्यालय के साथ में है। ये तो एकेडमिक रिजल्ट्स हुए हैं। स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स के ओर ही काम नहीं करता, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये सिर्फ हम आधा काम कर रहे हैं, आधा काम अभी बाकी है और यह है स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज। स्कूल इस दिशा में क्या हो रहा है सर, इसको देखें। स्कूल इस दिशा में भी काम कर रहा है। अभी गत दिनों एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई थी जो पूरी तरह से रोबोटिक्स की थी, जहाँ पर लगभग 46 रोबोट्स का प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन बच्चों ने किया था। एक बड़ी लेबोरेटरी यहाँ पर देखने को मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा और ये बहुत गर्व का विषय है, स्कूल के बच्चों ने आईआईटी मुंबई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, आईआईटी मुंबई मेरे ख्याल से देश का सर्वश्रेष्ठ आईआईटी कहलाता है। आईआईटी मुंबई ने टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और उसके लिए पूरे देश में हर राज्य में उन्होंने कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराई है। भोपाल में ऑर्गेनाइज जो कॉम्पिटिशन थी उसमें मास्टर कार्तिक पाटीदार, मास्टर हर्ष पाटीदार, मास्टर करण पाटीदार का पटेल, इन तीनों ने मिलकर अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मिस्टर बलराम लछेटा इन्होंने आईआईटी मुंबई के लिए अपना सिलेक्शन तय करा लिया है, जो अभी 16 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आईआईटी मुंबई में अपनी क्षमता का परिचय देंगे। ये कंपटीशन भोपाल में हुई थी और इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉस्मो क्लेंच। ये बच्चे कुछ देर के बाद इस मंच के माध्यम से आप लोगों को वो प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो उन्होंने बनाया है। एरो मॉडलिंग, ऐसे कुछ ही स्कूल हैं जहां पर एरो मॉडलिंग की सुविधा उपलब्ध है, शायद मध्य प्रदेश में पहला। स्टूडेंट ऑफ श्री कवरधरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर, ये भी पहले राउंड में इन्होंने भोपाल से अपनी टिकट बॉम्बे के लिए कटा ली है। ये बच्चे भी 16 से 20 दिसंबर के बीच आईआईटी बॉम्बे में अपना प्रोजेक्ट लेकर के जाएंगे। ये है, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बनाया है मेडिकल सप्लाई फिक्स्ड विथ विंग ड्रोन। ये वो ड्रोन बनाया इन्होंने जो ऐसे दुर्गम स्थिति में जाएगा जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और इसका ऑपरेशन यानी कि इसकी मॉनिटरिंग एक किसी जगह पर बैठकर की जाएगी और ये अपने आप चलता हुआ नजर आएगा। माननीय पालकगण,
ये तो वो चीज़ें हैं जो लगातार हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पोर्ट्स की, जहाँ पर हम बात करें स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन इन स्विमिंग कंपटीशन। आपके विद्यालय के बच्चों ने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर भी प्रथम स्थान पाया है। चेतन पटेल सिक्योर्ड ए पोजीशन इन स्टेट लेवल कंपटीशन। सबसे बड़ी बात यह है क्रिकेट में पहली बार खरगोन जिले से एक कक्षा 10वीं की छात्रा तनिषा पाटीदार, उसने इंदौर संभाग को रिप्रेजेंट किया है। मंदसौर में उसने मैच खेले हैं जहां पर इंदौर संभाग विजयी हुआ है। इसे भी फर्स्ट प्राइज एमपी के अंदर मिला है। स्पोर्ट्स में ही आगे बात करेंगे। नर्मदा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स इंटर स्कूल कंपटीशन विनर, अगर देखें 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन विनर मास्टर दानिश जॉर्ज, क्लास 12। इन्होंने 50 और 100 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन जीती है। इंटर स्कूल वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जो कि स्कूल एजुकेशन के द्वारा किया गया था, श्री कंवरतारा टीम विनर रही है। बहुत ज्यादा फोटो। आर्ट में मैथ्स में मास्टर रुद्र प्रताप सिसोदिया नेशनल लेवल विनर इन ऑल इंडिया मैथ्स पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इन सीनियर ग्रुप। ये नेशनल लेवल की कंपटीशन थी और नेशनल लेवल की कंपटीशन में सीनियर और जूनियर दोनों ही स्तर पर मास्टर रुद्र सिसोदिया और मास्टर आदित्य डेनियल दोनों ने प्रथम स्थान बनाया है। कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, नर्मदा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक इंटर स्कूल प्रिंसिपल का ग्रुप है जो वेरियस इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इसमें इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में प्रथम स्थान पाया है मिस अमृता अग्रवाल। एक्सटेम्परी विनर मास्टर प्रिंस पन्ना इन इंग्लिश। एक्सटेम्परी विनर इन हिंदी मास्टर भाविक स्वर्ण। डियर पेरेंट्स, ये बहुत कम में बातें यहाँ बता पा रहा हूँ। लगातार अचीवमेंट्स आ रहे हैं और आएंगे, एकेडमिक भी और ये स्पोर्ट्स और कल्चरल लेवल पर भी। मैं यहाँ पर आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूल पूरी क्षमता के साथ आपके बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्किल देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो उस ओर कार्य कर रहा है। हम यहाँ पर अपने टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग इस दिशा में कराते हैं जिससे कि वो सारे इंस्ट्रक्शन को इंटरेस्टिंग बनाएं, वेरियस न्यू मेथोडोलॉजीज के माध्यम से बच्चों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। कक्षा नर्सरी से यूकेजी में हम बच्चों के साइकोमोटर, फाइन मोटर, ग्रास मोटर और ईपीएल एक्टिविटी के माध्यम से इन बच्चों के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनको तैयार करते हैं। इनके पास बहुत सारी फील्ड ट्रिप होती है, कभी विजिटर मार्केट जाते हैं, कभी वेरियस टेम्पल जाते हैं। पूरी एक शानदार तैयारी इन बच्चों के लिए की गई है। इनके सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो खेल के माध्यम से इनको सिखाए जाते हैं। डियर पेरेंट्स, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले यहाँ पर सभी पालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक महायज्ञ में शामिल हैं, एक महान मिशन पर शामिल हैं जिसमें आप अपने बच्चों को किसी एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। विद्यालय अपने पूरे प्रयास 100 नहीं 200% करने की कोशिश करेगा और करेगा, लेकिन ये प्रयास अधूरा रहेगा अगर आप अपना सहयोग विद्यालय को और अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। मुझे कई बार कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो मुझे ये बताएं फिर किसके लिए समय है। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण शब्द होता है, ये वाक्य होता है जो हम सुनते हैं। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, पढ़ाना नहीं है। पहली बात इस मंच से मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपके बच्चे की मॉनिटरिंग करना आपका परम कर्तव्य है।
क्योंकि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रहा है, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में वो पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार के मित्रों के साथ रह रहा है, उसकी रहने की तरीके क्या हैं, कितनी देर वो अपने आप को अध्ययन करने के लिए बैठा हुआ है, कितनी क्रिएटिव एक्टिविटी वो कर रहा है, इन सब बातों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। साथ ही क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों के साथ बिताएं। मैं स्पेशली निवेदन करूंगा पिताजी से, क्योंकि फादर्स अक्सर बिजी होते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे पास गांव की चौपाल पर बैठकर बहुत सारी बातें करने का समय होता है। हम उन बातों में अपना समय ज़्यादा अच्छे से गुजार देते हैं जिनका जीवन में शायद बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने बच्चों के लिए, इस विद्यालय के बच्चों के लिए जो कि आगे आने वाले समय में इस संसार को नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, समय दें। टेक्नोलॉजी की बात हम शुरू से करते आए हैं कि अब ये मोबाइल छूटने वाला है, ये बात बहुत लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन मोबाइल निश्चित तौर पर अगर इसका सही उपयोग नहीं किया गया, ये ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही मोबाइल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसका एक जीवित उदाहरण है। हमने ये देखा कि पेरेंट्स से बात करना बहुत आवश्यक है। मैंने टीचर से कहा कि आपको पेरेंट्स से बात करना है, 1 महीने में 2 बार आपके फ़ोन पेरेंट के पास जाना चाहिए। उन्होंने फ़ोन लगाना शुरू किए, चूँकि ये मोबाइल था इसलिए माँ के पास भी है और पिता के पास भी है। अब बात करना पेरेंट्स का और टीचर से आसान हो रहा है, इसलिए मोबाइल बुरा नहीं है। मोबाइल का उपयोग करने का तरीका आपका क्या है वो आप पर निर्भर करता है। अगर बच्चा क्रिएटिवली मोबाइल यूज़ कर रहा है, आपकी मॉनिटरिंग में उसे यूज़ करने दें, लेकिन अकेले में नहीं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी बुराइयां भी जुड़ी हुई है। एक और यहाँ पर बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। हम अपने बच्चों को पूरा एजुकेशन किए बिना कहीं बाहर भेज देते हैं, इंदौर, कोटा या ऐसे कई जगह पर, और उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ स्कूल में लेकर के आए हैं। माननीय पालकगण, बच्चों को अपनी स्कूलिंग अपने स्तर पर पूरी करने दें। कहीं बाहर जाकर के उन्हें मॉरल सपोर्ट नहीं मिले और वो सही दिशा में न चल पाएँ, तो निश्चित तौर पर आज जो अपनी ओरिजिनल स्थिति में है उससे कहीं बाहर न चले जाएं। माननीय पालकगण, एक और जो लास्ट मैं आप लोगों से बात कहना चाहूँगा, मैं हर महीने आप लोगों से रूबरू होने का मन रखता हूँ, लेकिन हर बार आपको बुला पाना और आपका समय निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हर महीने मैं YouTube लाइव होकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आप लोग उस पर ज़रूर हम लोगों के आपके विचार रखें। हम उन बातों को समझेंगे जो हमें लग रहा है कि हमसे नज़रअंदाज हो रही हैं। हर महीने के आखिरी सप्ताह में मैं ये इनिशिएटिव लेता हूँ। आप लोगों से निवेदन है उसे आप देखें, समझें, क्योंकि वो आप उस समय नहीं भी देख पाए, आपके पोर्टल पर वो लिंक अवेलेबल है, आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई सी ऐसी बात है जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मैं हमेशा ओपन हूँ। आप यहाँ पर विद्यालय में आकर मुझसे वो बातें डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को और स्पेशली प्री प्राइमरी, प्राइमरी टीचर्स को जिन्होंने शानदार रंगारंग कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है, मैं पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. It was extremely motivating and informative. We are honored and privileged to have you among us. It's a matter of great pride that Mr. Gaurav Verma is amongst us. So I do request Honorable Principal Sir to welcome him. I do request the parents to give a huge round of applause and give a big hand. तालियां बजा के उनका स्वागत करें. Thank you so much, sir.